हित भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বিশ্বের সর্ববৃহৎ নেতা, বিশ্ববরেণ্য নেতা, সম্মানীয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দাস দামোদর দাস মোদিজি, আমাদের গর্ব। মোদিজিকে অঙ্গবস্ত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবেন আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সম্মানীয় সভাপতি শ্রী সুদাম পণ্ডিত মহাশয়। সুদামদাকে অনুরোধ করব মোদিজিকে সম্বর্ধনা জানাবেন। মেদিনীপুরের লোকসভার প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল দিদিকে অনুরোধ করব মোদিজিকে নন্দগোপালের মূর্তি দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। মেদিনীপুরের ক্লাস্টার ইনচার্জ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক উমেশ দা ও সমিত দাকে অনুরোধ করব ওনাকে মোমেন্টো দিয়ে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। লোকসভা কনভেনার দেবগোপাল বেরা, জেলার জয়েন্ট ইনচার্জ, জেলার ইনচার্জ সিদ্ধার্থ মজুমদার দা, শঙ্কর ব্যানার্জি দাকে অনুরোধ করব ওনাকে জগন্নাথের মূর্তি দিয়ে সম্বর্ধনা করার জন্য। এরপর আমি আগ্রহ করছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি, আমাদের লড়াকু নেতা সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। আজকে মেদিনীপুরে এই লোকসভার আমাদের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের প্রচারে আজকে আমাদের খড়গপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি ভগবান রামচন্দ্রকে 500 বছর পর অযোধ্যায় ফিরিয়ে এনেছেন, সেই নরেন্দ্র মোদী আমাদের মাঝে আছেন। একবার জোরে হাততালি দিয়ে আর মায়েরা উলুধ্বনি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। মায়েদের কাছে অনুরোধ করব উলুধ্বনি দিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান। উপস্থিত আছেন আমাদের এখানকার প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল, যিনি আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক। উপস্থিত আছেন মাননীয় দিলীপ ঘোষ, যার নামটাই যথেষ্ট, যিনি আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদ মাননীয় দিলীপ ঘোষ সহ উমেশ রায়, আমাদের হিরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি আমাদের এখানকার স্থানীয় বিধায়ক, বর্তমানে ঘাটালে আমাদের প্রার্থী, দীপক বর্মন আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক, সমিত দাস, সোনালী মুর্মু, ইনচার্জ সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং কো ইনচার্জ শঙ্কর ব্যানার্জি সহ জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের মহিলা মোর্চা থেকে শুরু করে যুব মোর্চা থেকে শুরু করে সমস্ত মোর্চার পদাধিকারীগণ, সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে এবং লোকসভার কো কনভেনর অজয় জানা, সুকুমার রায় সহ মণ্ডল সভাপতি, মণ্ডলের পদাধিকারীগণ
আর সব থেকে বড় কথা, আমার মেদিনীপুরের মা বোনেরা ভাইয়েরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা ঠিক করেছেন যে আরো একবার এই মেদিনীপুরকে নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিতে হবে, পদ্ম ফুল ফোটাতে হবে, অগ্নিমিত্রা পালকে আবার দিল্লিতে পাঠাতে হবে, সেই মায়েদেরকে আমি প্রণাম জানাই, দাদাদেরকে প্রণাম জানাই। বন্ধুগণ, এই 24-এর ইলেকশন ঠিক করবে দেশ আগামী দিনে কোন পথে যাবে, দেশ আগামী দিনে কোন রাস্তায় যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারতের দিকে যাবে, নাকি মমতা ব্যানার্জির মতো লোকেদের নেতৃত্বে এই চোরেদের হাতে যাবে। আপনারা ঠিক করবেন, আপনাদেরকে ঠিক করতে হবে। বন্ধুগণ, এই চোরেদের হাতে কি আমরা এই গোটা দেশকে তুলে দেব কি? তাহলে আগামী দিনে যে নির্বাচনে আপনাদের হাতে বাবা সাহেব আম্বেদকর যে অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকারকে প্রয়োগ করুন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন, আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ ও প্রণাম পৌঁছে দিন, আর বলুন যে পদ্ম ফুলে আর একবার ভোট দিয়ে এই মেদিনীপুর লোকসভা নরেন্দ্র মোদীকে আমরা উপহার তুলে দিই, এই নরেন্দ্র মোদীর হাতে আমরা এই লোকসভাকে তুলে দিই। কারণ দিদিমণি চায় না যে এই লোকসভা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি আবার আগের থেকে বেশি সিট নিয়ে সামনের দিকে যাক। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাহলে পরে অভিসন্ধি সেখানে পূরণ হবে না। তার অভিসন্ধি কি? তিনি বলছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ কেন পলিটিক্স করবেন, কেন রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু স্বামীজি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলবেন, কখনো বলছেন ইসকন কেন বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলবেন। দিদিমণি, যখন ইমাম অ্যাসোসিয়েশন থেকে যখন চিঠি দেয়া হয় যে তৃণমূলকে ভোট দিন, তখন তো তোমার মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না। এখন যখন ইসকন বলছে, ভারত সেবাশ্রম বলছে, তখন তোমার জ্বালা জুড়ে যাচ্ছে। তাই আমি, মুখ্যমন্ত্রী তো নির্লজ্জ আমাদের, তিনি কারো কাছে ক্ষমা চাইবে না। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকনের অবদান জানে না। আমি বাঙালি হিসাবে, এই রাজ্যবাসী হিসাবে স্বামী পরমানন্দজি মহারাজ থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস থেকে শুরু করে এবং প্রভুপাদ থেকে শুরু করে তাদের উত্তরসূরিদের কাছ থেকে আমি হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আপনাদেরকে যে অপমান করেছেন, সেই অপমান আপনারা যোগ্য ছিলেন না। আপনারা এই ভারতবর্ষকে সামনের দিকে নিয়ে গেছেন। সেই জন্য আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই সরকারকে আবার সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে, যিনি আগামী দিনে 5 বছর 80 কোটি মানুষকে ফ্রিতে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এটা নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি। কি রেশনে গেলে ফ্রিতে রেশন পাচ্ছি তো। আর তৃণমূলের গ্যারান্টি কি? মোদিজি রেশন পাঠাবে আর তৃণমূল সেই রেশন চুরি করবে। এটা হচ্ছে মোদিজির গ্যারান্টি। এটা মোদিজির গ্যারান্টি, আর তৃণমূলের গ্যারান্টি হচ্ছে রেশন চুরি করা। তাই আগামী দিনে বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, তাকে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জোরে ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান। भारत माता की मेदिनीपुर समस्त शक्ति स्वरूपा मां बोनेदेर आमार प्रणाम। मैं खड़गेश्वर महादेव और भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं। साथियों, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा ये जन सैलाब, मेदिनीपुर का ये माहौल ये बता रहा है पूरा बंगाल विकसित भारत के लिए संकल्प ले चुका है। पूरा बंगाल ठान चुका है इस बार भी केंद्र में
एक मजबूत सरकार बनानी है और इसलिए कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अटक हो या कटक, बंगाल का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये कुछ बच्चे कुछ चित्र लेके आए हैं, बढ़िया वेशभूषा करके आए हैं। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थक जाएंगे, जरा इनके हाथ से ये फोटो और कुछ लिख करके लाएं, ले लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, बीजेपी की इस आंधी ने टीएमसी के आतंक के सभी किले ध्वस्त करना शुरू कर दिया है और इसलिए बंगाल में टीएमसी वाले जरा ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। अब बस 25 मई को एक और प्रहार की जरूरत है। बंगाल में फिर टीएमसी के आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले को गिरते देर नहीं लगेगी। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी लोकतंत्र की लड़ाई पूरी तरह हार चुकी है। इसलिए वो गुंडों के सहारे जीतना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बंगाल के मेरे जाबाज नौजवानों, किसी से डरना नहीं है। मेदिनीपुर की धरती वीरों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहां लोगों ने सत्य की मिसाल और सत्य की मशाल कभी नहीं छोड़ी। उसी मशाल से अंग्रेजों का साम्राज्य जल करके राख हो गया था। टीएमसी के सिंडिकेट और तौलाबाजों की तो हैसियत ही क्या है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जनता के सामर्थ्य को वो भांप नहीं पाए हैं, क्योंकि 4 जून के परिणाम तय है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, बंगाल में टीएमसी का मतलब है आतंक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद।
अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार हिंदू समाज, हिंदू आस्था को अपमानित कर रही है टीएमसी। यहां की मुख्यमंत्री के ताजा बयान से बंगाल ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में मानवता प्रेमी समाज बहुत गुस्से में है। आप याद कीजिए, टीएमसी के एक एमएलए ने कहा था कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। संतों ने ऐसी राजनीति न करने की सलाह टीएमसी के नेताओं को दी और इससे यहां के मुख्यमंत्री भड़की और मुख्यमंत्री ने सारी हदें पार कर दी है। मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम संघ पर भद्दे भद्दे आरोप लगाए हैं, संत समाज का अपमान किया है। साथियों, ये हिंदुओं को मिटाने की बात करने वाले एमएलए को एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये लोग राम का नाम लेने वालों को गालियां देंगे। ये लोग रामनवमी मनाने नहीं देंगे और मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील करेंगे। यही टीएमसी और इंडी गठबंधन वालों की सच्चाई है। वोट बैंक के सामने घुटने टेकने वाली ऐसी टीएमसी सरकार आपका एक वोट भी पाने की हकदार नहीं है। साथियों, टीएमसी के तुष्टीकरण ने बंगाल में डेमोग्राफी को डामाडोल कर दिया है। समाज व्यवस्था को पूरी तरह छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। टीएमसी देश के दूसरे राज्य वालों को बाहरी बताती है, लेकिन अवैध घुसपैठिए इनको अपने लगते हैं। आप मुझे बताइए, बंगाल को घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं है? खतरा है कि नहीं है? घुसपैठिए बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं।
कई इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। भाई और बहनों, बंगाल के जन जन को इसका जवाब लेने का समय आ गया है। लेकिन टीएमसी सरकार आंख बंद करके सत्ता भोगने में पड़ी हुई है। आपको पता है ना, घूसपैठियों का फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है? टीएमसी सरकार बनवाती है कि नहीं बनवाती है? एक घुसपैठिए आपके लिए भले ही आफत है, भले ही ये बंगाल के लिए संकट है, लेकिन टीएमसी के लिए ये वोट बैंक है। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जहां जहां घुसपैठियों के वोट बढ़ गए हैं, टीएमसी उन्हें अपनी सुरक्षित सीट मानती है। इसलिए टीएमसी बंगाल की पहचान मिटाने का एक खतरनाक खेल खेल रही है। टीएमसी की प्लानिंग है घुसपैठियों को न्योता और बंगाल के लोगों से नफरत। इन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी है। इन्होंने बंगाल का उद्योग व्यापार चौपट कर दिया है। इन्होंने बंगाल का रोजगार चौपट करके रखा है। हमारे बंगाल के लोगों को मजबूर होकर आज बाहर जाना पड़ रहा है और इस वजह से जो जगह बन रही है वो टीएमसी के अपने प्रिय घुसपैठियों को दे रही है। टीएमसी की साजिशों को रोकने के लिए केंद्र में एक मजबूत बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है। जब तक मोदी है, मैं इनके इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी घुसपैठियों का तो स्वागत करती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन यहां आए हैं, प्रताड़ित होकर के आए हैं, उन्होंने देशों से निकाले गए हैं, उनका वो घोर विरोध करती है। मेरे भाइयों बहनों, मैंने वादा किया था और मैं कोई काम पर्दे के पीछे नहीं करता हूं, सीना तान करके करता हूं, आंख मिला के करता हूं। मैंने वादा किया था मैं इन शरणार्थी परिवारों को नागरिकता दूंगा। ये देश
और बंगाल के विभाजन के समय से हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं। ये हमारे भाई बहन हैं, इनमें हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं। लेकिन टीएमसी इनकी मदद का विरोध कर रही है, सीएए का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे, हम सीएए को उलट कर देंगे। जरा टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, लेफ्ट वाले दीवार पे लिख के रखना, मोदी जब तक जिंदा है ना कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। साथियों, सीएए ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन ये टीएमसी झूठ बोलने की उसकी आदत जाती नहीं है। दिन रात झूठ बोलती रही कि सीए का फॉर्म भरा तो नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अब इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अभी 4 दिन पहले 300 से ज्यादा शरणार्थियों को नागरिकता देकर के शुभ शुरुआत हो चुकी है। मैं टीएमसी वालों से कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, सीएए ये मोदी की गारंटी है। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलकर के रहेगी और अवैध घुसपैठियों का आतंक बंद होकर के रहेगा। साथियों, कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लोग एक दूसरे को बंगाल में गाली देते हैं और फिर दिल्ली जाकर दोस्ती निभाने लगते हैं। टीएमसी बंगाल में भले ही अनग चुनाव लड़ने का नाटक कर रही हो, लेकिन दिल्ली में टीएमसी इंडी गठबंधन की पार्टनर है। ये डबल खेल खेलने वाले लोग क्या मेरे बंगाल के लोगों को समझने में गलती नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने, धोखाधड़ी करने को राजनीति मानते हैं। क्या बंगाल के लोग इनका ये दोहरा चरित्र समझते हैं कि नहीं समझते हैं? साथियों, पिछले 10 साल से मोदी का मंत्र है बंगाल का विकास, पुरजोश विकास, चारों तरफ विकास। लेकिन टीएमसी का एजेंडा है बंगाल के विकास को ठप करना,
खड़गपुर से भुवनेश्वर के लिए हाई स्पीड सड़क हो, बंगाल में 36,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हो, अमृत भारत स्टेशनों का विकास हो, यहां से चल रही वंदे भारत ट्रेनें हो, ऐसे अनगिनत काम ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? ये सब तो मोदी को आपने जो आशीर्वाद दिए ना, वो आशीर्वाद ने किया है। ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। आपके एक वोट की ताकत से हुआ है। भाइयों बहनों, मां, माटी, मानुष कहकर इतना बड़ा धोखा भारतीय राजनीति में किसी और दल ने कभी भी नहीं किया है। मोदी बंगाल के हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है, लेकिन जो राशन मैं भेजता हूं, ये टीएमसी वाले उसे भी खा जाते हैं। यही है टीएमसी का मां, माटी, मानुष। मोदी गरीबों को पक्के घर देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन टीएमसी उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आवास के लिए केवल टीएमसी के लोगों के नाम भेजे जाते हैं। यही है टीएमसी का मां, माटी, मानुष। मैंने बंगाल में हर घर जल पहुंचाने के लिए काम शुरू किया। इन्होंने जल जीवन मिशन के नाम पर केवल पाइप बिछाए, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। पानी का पैसा तक टीएमसी वाले खा गए। और मुझे अभी पुरुलिया में हमारे एक साथी ने बताया कि जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाना ही, पाइप डालना है, तो इनके तोलाबाज उस घर वालों से 2,000-2,500 रुपया मार लेते हैं, तब तक काम नहीं होने देते हैं। यही है टीएमसी का मां, माटी, मानुष। साथियों, मेदिनीपुर हमारे शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की कर्मभूमि रहे हैं। और दिलीप को मैं राजनीति के पहले से जानता हूं। मेहनत करना उसके स्वभाव में है, वो चैन से बैठ नहीं सकते। और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के नाते भी दिन रात एक किए थे। शुभेंदु जी यहां टीएमसी के अत्याचार से लगातार लड़ रहे हैं। वे भी बहुत तेजी से बंगाल के लोगों के सुख सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की विशेष जिम्मेदारी है। मेदिनीपुर से बहन श्रीमती अग्निमित्रा पॉल और घातल से हिरण्यमय चट्टोपाध्याय जी
मेरा अनुरोध है 25 मई को ये मेरे दोनों साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और जब आप इनको वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी मजबूत होगा, बंगाल के सपनों को पूरा करेगा। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी पोलिंग बूथ जीत के आएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हुंकार एक भरो भरो, धराका हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो।